Students, today we start Legendre equation. So first of all, what is Legendre equation? The differential equation of the form 1 minus x square d2y by dx square minus 2x dy by dx plus n into n plus y, n plus 1 into y equal to 0 is called Legendre equation, where n is the parameter, may be real or complex. So first we will find solution of this Legendre equation. Now how to find solution of differential equation in series form? We have to write the solution in the powers of x. So to write solution in the powers of x means we have to write solution at x equal to 0. So we have to check, first of all we have to check whether x equal to 0 is ordinary point or singular point. Earlier in power series solution method solution, we did how to find ordinary point and singular point. Here for this equation you will see that x equal to 0 is ordinary point. If x equal to 0 is ordinary point, we will solve this equation, or we will write the solution using ordinary method or Frobenius method. So any of the two you can apply to find the solution. Here we find solution by ordinary method. So let y is equal to summation am m0 to infinity x to the power m is the solution of the differential equation. Now find dy by dx. dy by dx is m am x to the power m minus 1 m1 to infinity. We did all this in power series chapter. So double derivative is this. Now substituting back y, value of y, dy by dx and d2y by dx square in this equation, we will get this. So substituting all the values, we will get this equation. Now how to solve? Multiplying 1 and minus x square. So we will get first term as this, second term यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर m minus 2, so it will get, you will get x की पावर m, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे you will get x की पावर m minus 2, and next multiply with x into x की पावर m minus 1, you will get x की पावर m, next you will get x की पावर m. So students, अगर आप देखो यहाँ पे भी x की पावर m है, यहाँ पे x की पावर m है, यहाँ पे x की पावर m है, और यहाँ पे भी x की पावर m. सो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? यहाँ पे x की पावर m माइनस 2 है. सो वी हैव टू चेंज इट टू द x टू द पावर m. सो उसको कैसे चेंज करोगे? ये जो आपके पास x माइनस 2 है, इसको आप k पुट कर दोगे. तो जब आप m इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करोगे, इट इज़ 2 माइनस 2 k 0. बट जब आप दोबारा से इसमें पुट करोगे तो आप k को क्या पुट करोगे? m. सो इट इज़ m 0 टू इन्फिनिटी. क्लियर है ये स्टेप? m माइनस 2 को k लिखा, जब m को 2 पुट किया इट इज़ k 0. बट जब आप दोबारा वहाँ पे पुट करते हो वैल्यू, तो आपने k को क्या पुट करना है? m. सो m की वैल्यू क्या है? k प्लस 2. सो हमने k प्लस 2 आपके पास आया, बट जब दोबारा पुट करोगे इट इज़ रिप्लेस्ड विद m. सो इट इज़ m प्लस 2. m माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे? m प्लस 1. आपने k की वैल्यू निकाली है, सो इट इज़ am. सो am, m की वैल्यू k प्लस 2, बट k को आपने रिप्लेस करना है m प्लस 2 से. सो इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? m प्लस 2. और m माइनस 2 किसके इक्वल है? k के. बट यहाँ पे k की जगह आपने क्या लिखना है? m. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपने x की पावर m बनाना है. x की पावर m बनाने के लिए वी विल पुट दिस एज k. बट जब आप बैक सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में, तो आपने k को फिर से क्या करना है? m पुट. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें m इक्वल टू 2, तो k 0 आएगा, बट हमने k को क्या लिखा है? m.
m की वैल्यू क्या है k+2, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इट इज़ m+2, m माइनस m की वैल्यू क्या है k+2, m-1 की वैल्यू क्या आएगी k+1, बट हम जब दोबारा इसको पुट करेंगे इट इज़ m+1। यहाँ m की वैल्यू क्या है k+2 और यहाँ पे दोबारा पुट करेंगे सो इट इज़ m+2 और x की पावर m। सो हेयर इट इज़ ओके, x की पावर m, x की पावर m, x की पावर m। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आपके पास समीशन जो है वो m0 पे है, यहाँ m2 पे है, यहाँ m1 पे है और यहाँ हमें m0 पे है। हमने हाईएस्ट पे लेके आना है, मीन्स m=2 पे लेके आना है। सो m=2 के लिए ओपन फर्स्ट टू टर्म्स फॉर m0 एंड m1। सो वी हैव m=2 से सीरीज, नेक्स्ट तो 2 से थी ही, नेक्स्ट 1 से थी तो 1 के लिए खोल ओपन किया, 2 पे आ गया। उसी तरह जो नेक्स्ट 1 थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, सो 0 के लिए टर्म लिखी, 1 के लिए टर्म लिखी, सो यू विल गेट इट एट 2। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, सो यू विल गेट a2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 0, मीन्स आपने यहाँ पे 0 क्यों पुट किया है, आप कंपेयर कर रहे हो, एक साइड पे यहाँ x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है ये और यहाँ पे इक्वल टू 0, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स की द पावर 2। सो वी आर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट बेसिकली, सो इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 यहाँ पे ये है और दूसरी राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है 0। सो यू विल गेट a2, सिमिलरली व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1 0 you will get this। so next you will get a1 and a3 is this। now put coefficient of x to the power m, कंपेयर करोगे तो सारे कोफिशिएंट उस राइट हैंड साइड पे तो सारे कोफिशिएंट 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू आती रहेगी। सो वी हैव am+2 एज द रिलेशन m-n, m+n अपॉन m+1, m+2 into am। so how will you write the solution? put m equal to 2, you will get a4, put m equal to 5, you will get a5। so putting all these values again in the equation जो हमने लेट किया था कि सोल्यूशन जो है हमारे पास वो किस तरह का होगा, समीशन am x टू द पावर m। तो am सारे आ गए हमारे पास, सो आपके पास a0 प्लस a1x सेम था, a0 और a1, तो a2 की वैल्यू क्या आई थी, a2 की वैल्यू आपके पास आई थी ये -n+1/2 a0। सो ये वैल्यू आपने पुट की वहाँ पे, सो दिस इज हेयर, सो यू विल गेट दिस। यहाँ पे a3 की वैल्यू पुट की, इसी तरह a4 की वैल्यू ये आई, ये पुट की, a5 की वैल्यू पुट की, यू विल गेट अ सोल्यूशन। अब आप देखो यहाँ पे a0 के कोफिशिएंट्स भी हैं और a1 के कोफिशिएंट भी है। a0 का कोफिशिएंट ये है 1 और यहाँ पे ये है a0 का कोफिशिएंट और यहाँ पे ये 0, मीन्स जो इवन पावर्स हैं वो तो a0 के साथ हैं और जो ऑड पावर्स हैं x की वो a1 के साथ है। सो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो a0 के साथ आपके पास आ गया 1 माइनस n इंटू n+1 x², n इंटू n+1 n-2 n+3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x टू द पावर 4, यहाँ सारे इवन टर्म्स हैं और यहाँ पे a1 और साथ में इवन और टर्म्स। अब ये भी एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है और ये भी एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है। सो जो आपके पास लीजेंडर इक्वेशन थी उसका सोल्यूशन किस तरह से आ गया, a0 y1x प्लस a2 a0 y1x प्लस a1 y2x इज द सोल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। और y1 y2 आपके पास क्या है, फिर से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। सो आपके पास y1x हमने ये लिख लिया, this is y1x containing all the even powers of x with these coefficients, or this is y2x। now consider the the different cases। case 1, when n is integer, n कोई भी integer है, so let us say n is 2। अब अगर हम n को 2 डालें तो ये जो फर्स्ट y1 वाली टर्म है इसमें यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, वहाँ n-2 डालने के लिए ये टर्म 0, ये वाली टर्म 0 और इसके बाद वाली सारी टर्म 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये दो टर्म्स। तो ये एक फाइनाइट पॉलिनोमियल आ गया आपके पास। और इसमें देखो, इसमें तो सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, ये फाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। सो यही लिखा है, इफ़ n इज़ इंटीजर देन 1 of 5 या ये 1 of them will terminate।
So for example, n is 2 will terminate and become finite. Next, case 2. यहाँ पे तो हमने कंसीडर किया था कोई भी इंटीजर. लेट n is positive even integer. If n is positive even integer, say n is 4. Suppose n is 4, positive 4. So यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ n minus 4 है, इसके बाद सारी टर्म्स में n minus 4 आएगा. तो आपके पास होगा क्या, सिर्फ आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड आएगी और थर्ड आएगी. मीन्स x की पावर 4 के कोफिशिएंट्स तक आएंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, वैनिश, जीरो हो जाएंगी. सो दिस विल बिकम अ फाइनाइट पॉलिनोमियल. और y2 में सारी टर्म्स होंगी, सो दिस रिमेन्स इनफाइनाइट. सो इज इट क्लियर? सो फॉर n पॉजिटिव इंटीजर सीरीज 5 विल टर्मिनेट. टर्मिनेट मीन्स बिकम फाइनाइट. कुछ स्टेप्स के बाद एट द टर्म x to the power n and y1 becomes a finite polynomial. So for f n is equal to 4, y1 terminate at the power x to the power 4, all the terms vanish, it becomes polynomial of degree 4. जैसे मैंने आपको बताया, it becomes polynomial of degree 4. बाकी ये सारी terms क्या हो जाएंगी, 0. So it is polynomial of degree 4. Highest degree क्या है इसकी, 4. So it is polynomial of degree 4 for n is positive even integer. If n is positive odd integer, so series 6, positive odd integer. So positive integer let us say 3. So अगर हम 3 ले लें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और इसके बाद वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी. तो कौन सी टर्म्स बचेंगी, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड. सो इट विल बिकम अ पॉलिनोमियल, फाइनाइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. बाकी सारी टर्म्स तो वैनिश हो रही हैं, बट यहाँ पे सारी रहेंगी. सो ये इनफाइनाइट और ये finite. So for n positive odd integer, when n is negative integer, so let us say if n is negative integer, say -2. So यहाँ पे तो सारी टर्म्स रहेंगी, बट when n is -2, ये 0, इसके बाद वाली टर्म 0 और उसके बाद वाली सारी टर्म 0. So you are left with only one single finite polynomial of degree 1. So one of these becomes finite, other with इनफाइनाइट. हर केस में यही हो रहा है, एक फाइनाइट रह जाता है और दूसरा इनफाइनाइट रह जाता है. सो इन सबको कंबाइन करके हमें क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम, व्हेन n इज एन इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव, द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन, जो आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू a1 y1x, सॉरी a0 y1x प्लस a1 y2x, कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल सोल्यूशन फाइनाइट टर्म्स. ठीक है, एक में फाइनाइट टर्म्स होंगी और दूसरे में इनफाइनाइट. समझ आ रही है? सो आपके पास जो सोल्यूशन था y इज इक्वल टू a0 y1 प्लस a1 y2, उसमें से एक तो फाइनाइट रह जाती है और दूसरा इनफाइनाइट रह जाता है, हर एक केस जो हमने डिस्कस किया. सो यही लिखा हुआ है, एट वन टाइम ईदर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव वही. सो वन सोल्यूशन बिकम्स फाइनाइट बट अदर रिमेन्स इनफाइनाइट. सो व्हाट इज नाउ लीजेंडर पॉलिनोमियल. सो लीजेंडर पॉलिनोमियल के लिए अगर हमारा जो पॉलिनोमिक सोल्यूशन है, पॉलिनोमियल सोल्यूशन जो हमें मिलता है, जो उसमें हम a0 और a1 को इस तरह से चूज करें कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाए, ओनली 1 एट x इक्वल टू 1, देन दैट पॉलिनोमियल इज ऑफ ऑर्डर n. ऑर्डर n मीन्स इट इज फाइनाइट. ठीक है, सो ऑर्डर n उसी का ही होगा जो फाइनाइट होगी. सो इट इज डिनोटेड बाय Pn(x). सो वो सोल्यूशन जिसमें a0 और या फिर a1, देखो एट अ टाइम a की सोल्यूशन जो है वो फाइनाइट हो रहा है और दूसरा इनफाइनाइट हो रहा है. तो a0 के साथ हमारा एसोसिएट हो रहा है y1 और a1 के साथ एसोसिएट हो रहा है y2. तो जो भी फाइनाइट होगा आपके पास, अगर तो y1 फाइनाइट बन रहा है तो a0 की वैल्यू इस तरह से चूज करो कि इट विल बिकम 1 एट x इक्वल टू 1. और अगर आपके पास y2 फाइनाइट हो रहा है तो चूज वैल्यू ऑफ a1, इस तरह से वैल्यू चूज करनी है a1 की, दैट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल बिकम्स 1 एट x इक्वल टू 1, देन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n और ऑफ ऑर्डर n. It is not degree, it is of order n and it is denoted by Pn(x). So other one कौन सा होगा जो infinite होगा, that is Qnx. So this completes the solution of
Legendre equation. So thank you for watching.